साहब सर दारुल उलूम इस्लाम नगर से इंतहाई अदब से दरख्वास्त है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएँ। जनाब मौलाना आफ्ताब आलम नदवी साहब मोहतरमा तालीमात दारुल उलूम इस्लाम नगर से भी दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएँ। मौलाना शरीफ स्टेज पर तशरीफ फरमा। मुल्क के मारूफ मशहूर उलमा फज़ला और उदबा और मोहतरम सामीईन, अब वक्त हो चुका है। बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हम दरख्वास्त करेंगे इस्लाम नगर के मारूफ मशहूर कारी मोहम्मद सुल्तान कासमी साहब से कि आप आएँ, तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से आज के इस बाबरकत इजलास का आगाज़ करें। कि आप आएँ, तिलावत कलाम पाक से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब कारी मोहम्मद सुल्तान कासमी साहब। डिस्टेंस करवाएं टेबल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लिम तु'ज़ूननी वक़द तअलमून अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन।
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. شکریہ، جزاک اللہ جناب قاری سلطان قاسمی صاحب. محترم حضرات، نام خدا کے بعد نام رسول خدا ہماری دینی اور اسلامی تہذیب کا حصہ ہے، اور ہمارا کلمہ طیبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم محمد رسول اللہ نہ کہہ لیں. اب آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے برادرم عبدالحسیب متعلم عربی اول سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعتیہ کلام پیش کرنے سے پہلے چار مسئلہ قطع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. دوزخ سے وہ امت کو بچانے میں لگے ہیں، دوزخ سے وہ امت کو بچانے میں لگے ہیں، دوزخ سے وہ امت کو بچانے میں لگے ہیں، بچانے میں لگے ہیں، دوزخ سے وہ امت کو بچانے میں لگے ہیں، بچانے میں لگے ہیں، دوزخ سے وہ امت کو بچانے میں لگے ہیں، بچانے میں لگے ہیں، بچانے میں لگے ہیں، اللہ کو سرکار منانے میں لگے ہیں، اللہ کو سرکار منانے میں لگے ہیں، کسائے کی طرح ساتھ میں رہتے ہیں نبی کے،
رہتے ہیں نبی کے سائے کی طرح ساتھ میں رہتے ہیں نبی کے رہتے ہیں نبی کے رہتے ہیں نبی کے ابو بکر تو تقدیر بنانے میں لگے گئے ابو بکر تو تقدیر بنانے میں لگے گئے دوزخ سے وہ امت کو بچانے میں لگے ہیں بچانے میں لگے ہیں اب نعتی اشعار پیش کرتا ہوں سماج فرمائیں احمد مرسل فخر دو عالم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مزکا روح مصور قلب مجلا نور مقطر حسن سراپا حسن سراپا غیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طینت جس کی سب سے مطہر طینت جس کی سب سے مطہر بعثت جس کی سب سے مؤخر خلقت جس کی سب پہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہراول فوج سلیمان جس کی ہراول فوج سلیمان جس کے منادی موسیٰ عمران جس کے مباشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی ظلمت جس نے مٹائی دین کی دولت جس نے لٹائی لہرایا جس نے توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باغ جہاں کا حارث نامی جس نے مٹا دی رسم غلامی جس نے مٹا دی رسم غلامی پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مرسل فخر دو عالم
मुरसल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब इसके बाद जनाब मौलाना ज़ियाउल हुदा इस्लाही साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सबका इस्तकबाल करेंगे। क़ब्ल इसके कि मैं उन्हें दावत दूं, इस इलाके के समाजी कारकुन और रातू प्रमुख श्री सुरेश मुंडा से अनुरोध है कि आप स्टेज पे प्रकट हों। मसो इस्लाह शाख झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपकी इस इलाके के लिए बड़ी खिदमात हैं, रिफाई, मिली और ख़ास तौर से तालीमी मैदान में अपने आप को इन्होंने वक्फ कर दिया है। हम इनसे इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करेंगे कि आप आएँ और मेहमानों का इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आली मर्तबत, मेहमान मोहतरम व हाज़िरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज का ये तारीख़ी दिन न सिर्फ हल्क़े इस्लाम नगर बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए नहायत मुबारक दिन है। एक तरफ को बयाबा की इस सरजमीन का अपना फितरी हुस्न है, तो दूसरी तरफ चमनिस्तान शिबली व फराही और गुलशन सुलेमान अली के गुलो लाला ने अपने उरूद मसूद से इसके हुस्न में चार चांद लगा दिए हैं। बिलाशुबा रांची की तारीख में ये पहला मौका है कि आसमान इल्म व अदब के माह अंजुम और अशहब फ़िक्र फ़न की इतनी बड़ी तादाद की जलवानुमाई हुई है, जिसकी ज़ियापाशियों से आज ये पूरा इलाका जगमगा रहा है। हम अपनी इस सआदत और खुशबख्ती पर जितना भी नाज करें कम है, और इस तौफ़ीक़ खुदाबंदी पर जिस कदर भी हम तो शुक्र बजा लाएँ कम है। इसलिए कि ऐसे मौक़े खुश नसीबों को साज़ो नादिर ही हासिल हुआ करते हैं कि आती नहीं फसल गुल रोज़ रोज़। हज़रात, हमें मालूम है कि आप हज़रात आसमान इल्म व अदब के दरख्शां सितारे हैं। हमें आपकी मसरूफ़ियतों का भी इल्म है, और ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला ने आपको आराम व आशाइश की नेमतों से भी नवाजा है। उसके बावजूद आप हज़रात ने दूर दराज के सफ़र की सूबतें बर्दाश्त करके एक ऐसे इलाके में कदम रंजा फरमाया है जो आज भी तालीमी, तहज़ीबी, माशी और समाजी लिहाज से पसमानदगी का शिकार है। ऐसे में हमें इतराफ़ है कि हम आपकी शायान शान तो न हक़ में मेज़बानी अदा कर सकते हैं, न ही आपके आराम व आशाइश का वो इंतज़ाम कर सकते हैं जिसके आप हक़दार हैं। लेकिन अपने दिलों में बेपनाह जज्बे ईमानी रखने वाले और उलमा और सुलहा और अहले इल्म की दिल से कदर करने वाले इलाके के सीधे साधे अवाम की मोहब्बतों के गुलदस्ते को आप पर निसार करते हुए हमें काफ़ी इत्मीनान और सुकून हासिल हो रहा है, जिनकी निगाहें महीनों से आप हजरात के इंतज़ार में फर्श रात ही। हम अपनी तरफ से असातिज़ा और तलबा दारुल की तरफ से और तमाम बाशिंदगान और नौजवानान हल्के इस्लाम नगर की जानिब से आप हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अपने जज्बात से मोहब्बत को आपके कदमों पर निछावर करते हैं। मेहमानान गिरामी, हम इस अहम मौके पर हम ज़रूरी समझते हैं कि इस इलाके की तहज़ीबी, सकाफ़ती और तारीख़ी हैसियत पर भी कुछ रोशनी डाल दी जाए, क्योंकि तहज़ीबी और सकाफ़ती लिहाज से यह खित्ता मुल्क के मैदानी इलाकों से काफ़ी मुख्तलिफ रहा है। तारीख़ी एतबार से ये इलाका हज़ारों साल से मुल्क के कदीम बाशिंदे
आदिवासी कबाइल का मस्कन रहा है, जो आर्यों से शिकस्त खाकर और उनके जुल्म व सितम से तंग आकर भारत के जुनूब व मशरिक में आबाद हो गए थे। ये कबाइल मज़ाहिर फितरत के पुजारी थे। देवी देवताओं और मूर्तियों की परस्तिश का इनके यहाँ कोई तस्वुर न था। सुलहबंदी और एहसान शनासी इनकी फितरत में शामिल थी। अलबत्ता किसी को दुश्मन समझ लेने के बाद इनकी सिफत बहीमियत बेकाबू हो जाया करती। कमोबेश की सिफत आज भी उनके अंदर बाकी है। सैकड़ों साल पहले इन कबाइल की हैसियत कोरे कागज़ की थी, जिन पर कोई इबारत भी लिखी जा सकती थी, लेकिन मुसलमानों के तवील दौरे हुकूमत में इस इलाके को नाकाबिल तवज्जो समझा गया। अलबत्ता बंगाल तक पहुँचने के लिए खित्ता गुज़रगाह की हैसियत रखता था। मुर्रिखीन का इस बात पर तकरीबन इत्तफाक है कि शेर शाह सूरी के अहद हुकूमत में मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुख्तलिफ मराहिल में लोग यहाँ आकर आबाद होते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की आबादी का तनासुब सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 15% हो चुका है और इस रियासत का शुमार कसीर मुस्लिम आबादी वाली रियासतों में होने लगा है। माजी हुआ तारीखी एतबार से मदारिस व खानकाहों का वजूद भी यहाँ नहीं मिलता। अलबत्ता कहीं कहीं स्यापोश फकीरों और छू बाबाओं के मज़ारात ज़रूर नज़र आते हैं। यहाँ आने वाले मुसलमानों की अक्सरियत पेशावर बिरादरियों से ताल्लुक़ रखती थी, जो तलाश माश में यहाँ आए थे, जिनके पास अरब ताजिरों की तरह कोई दावती मिशन तो नहीं था, बल्कि खुद उनके माशरा में मकामी और कबायली तहजीब व सकाफ़त और रसूम व रिवाज के जरासीम इस कदर दाखिल हो गए, इस्लाम के नाम पर चंद बिदआत और रसूमात के सिवा कोई मिल्ली शनाख्त इनके अंदर बाकी नहीं रही। 1916 ईस्वी में इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नज़रबंदी अगरचे मौलाना के लिए सज़ा थी, लेकिन उनकी ये सज़ा इस इलाके के लिए किसी नेमत गैर मुतरक़्क़बा से कम न थी। मौलाना आज़ाद ने यहाँ की दीनी और समाजी सूरत हाल को देखकर दो ऐसे काम किए जो बिलाशुबा इस इलाके में एक खुशगवार तब्दीली के लिए पेशखेमा साबित हुए। एक अंजुमन इस्लामिया के क़याम और दूसरा मदरसा इस्लामिया रांची की तासीस। मौलाना ने इस मदरसा में मुल्क के चीदा उलमाए किराम को जमा कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से 4 साल क़याम के बाद जब उनकी वापसी हुई तो उनके चंद ही साल बाद मदरसा का ज़वाल शुरू हो गया। मजबूर होकर लोगों ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मदरसे का इल्हाक करा दिया। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो नाकाबिल बयान है। ताहम मौलाना ने जहालत व नाखानदगी और बेदीनी धूप अंधेरे में इल्म आगही का जो चिराग रोशन किया था, उसकी रोशनी शहर व मुज़ाफ़ात तक पहुँच चुकी थी। बल्कि ये कहा जाए कि खुद मौलाना का क़याम रांची वो तारीखी मोड़ साबित हुआ, जिसके बाद ये लोग इस इलाके से वाकिफ़ हुए और अकाबिर ने उम्मत की तवज्जो भी जानिब मरकूज़ हुई तो बेजाना होगा। 1950 के अशरे में मुल्क के दो बुज़ुर्गों मौलाना अब्दुल रशीद रानी सागरी, खलीफा बानी नज़रतुल उलमा मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी और मौलाना शरफुल हक दहलवी की नज़र करम इस इलाके पर पड़ी। उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोग उनके हल्के इरादत में आ गए, जिनमें एक बुजुर्ग मौलाना कासिम अली मारूफ भी कासिम उस्ताद भी थे। मौलवी कासिम अली ने यहाँ से लोहरदगा तक शिर्क व बिदआत के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया और कई गाँवों में मकातिब का निज़ाम कायम किया, जिससे तबलीग व इस्लाह का सिलसिला ज़रूर चल पड़ा। ताहम 1960 से पहले तक हालात में खातिर खा तब्दीली पैदा नहीं हो पाई थी। पूरा इलाका शिर्क व बिदआत, तवहुम व खुराफात, जहालत व नाखानगी की मुबोलती तस्वीर था। इस पर तहजीब गैर की आमेजिश ने करेला और नीम चढ़ा के मुहारे को सही साबित कर दिया था। हजरात, तमाशाए खिज़ा के बाद अब अहदे गुल का भी जिक्र कर देना ज़रूरी समझता हूँ, जिसका ताल्लुक़ दारुल-उलूम के काम और उसके असरात व नताइज से है। 1960 ईस्वी का साल बिलाशुबा इस इलाके के लिए एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है, जब मौलवी कासिम अली के कुछ शागिर्दों ने, जिनमें मौलवी अमीरुद्दीन साहब मरहूम,
मौलवी मोहम्मद सिद्दीक साहब मरहूम, मौलवी मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब, मौलवी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब, मौलवी मोहम्मद सुलेमान और हाजी तालिब अली साहब मरहूम पेश थे। एक मदरसे के क़याम का फ़ैसला किया और आगे बढ़कर ज़मीन वक़्फ़ भी इस वक्त के सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो बिलाशुबा यह फ़ैसला कार फरहाद से कम न था, लेकिन बेपनाह हिम्मत और हौसले के मालिक हमारे बुज़ुर्गों ने इस फ़ैसले को अमली शक्ल देने के अज़्म बिलजज़्म के साथ हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान कामी से रुजू किया। हज़रत कामी साहब जिनका मिशन ही मकातिब व मदारिस का क़याम था, गोया इसके लिए पहले ही से तैयार बैठे थे। चुनांचे 1960 ईस्वी में हज़रत कामी साहब की क़यादत और रहनुमाई में दारुल उलूम की बुनियाद डाल दी गई। मदरसे का आगाज़ गरचे कच्चे पक्के चंद कमरों से हुआ, लेकिन इब्तदाई से इसकी तालीमी म्यार पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तालीमी निज़ाम में असली तालीम को भी मुकम्मल तौर पर शामिल किया गया, जो इस दौर के लिए एक नया तजर्बा था, लेकिन यह तजर्बा काफ़ी कामयाब रहा। चुनांचे यहाँ से तालीम की तकमील के बाद तलबा व तालिबात दीनी व असरी उलूम के दानिशगाहों में जहाँ भी गए दीगर तलबा से मुमताज़ व फाइक रहे और अपना और दारुल उलूम का नाम रोशन किया। दारुल उलूम के क़याम के चंद ही साल बाद से यहाँ के तलबा ने जामिअतुर रिशाद आज़मगढ़, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, मदरसतुल इस्लाह सराय मीर, जामिअतुल फलाह बिलरियागंज में दाखिला लेना शुरू कर दिया। मुतअद्दिद तलबा ने मज़कूरा मरकज़ी इदारों से तालीम की तकमील के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया JNU और AMU का भी रुख किया और मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी में अपना मकाम बनाया। यहाँ के मुतअद्दिद अबनाए कदीब ने अदब व सहाफ़त, तसनीफ़ व तालीफ़ के मैदान में भी अपना और इदारे का नाम रोशन किया और बाज़ ने इल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, जिनमें मौलाना हबीबुल्लाह नदवी, मौलाना अब्दुल सुभान नदवी, मौलाना निज़ामुद्दीन नदवी, मौलाना अलाउद्दीन नदवी, उस्ताद दारुल उलूम उलमा लखनऊ और मौलाना शरीफ हसन मजहरी के नाम खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। चुनांचे हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि गरचे ज़ाहिरी तामीरी और तरक्की के लिहाज से दारुल उलूम बहुत आगे ना बढ़ा हो, लेकिन अपने मुनफरिद निज़ाम तालीम, तरबियती सिस्टम और मेयार तालीम में ये अदारा पूरी रियासत में दीनी अदारों की सफ़ में मकाम इमामत पर खड़ा है। दारुल उलूम में इब्तिदाई से मखलूत तालीमी निज़ाम राइज था, जिसे मजबूरी के तहत कबूल कर लिया गया था, लेकिन ज़िम्मेदारान मदरसा को अव्वल दिन से अलग शोबे निस्वां के क़याम की फ़िक्र लायक थी। चुनांचे 1995 ईस्वी में जामिअतुल मुस्लिमात के नाम से बाकायदा अलहदा मदरसा क़याम अमल में लाया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 425 तालिबात ज़ेर तालीम हैं। 1995 में दारुल उलूम इस्लाम नगर को दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने अपने शाख के तौर पर मंजूर कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम इस्लाम नगर का शुमार नदवतुल उलमा के चंद बेहतरीन शाखों में होता है। तालीमी खिदमात के अलावा दारुल उलूम के क़याम से इलाके के समाजी व माशरती ज़िंदगी में भी एक खुशगवार तब्दीली रूनुमा हुई। तालीम का चर्चा आम हुआ, ईमान व अक़ीदे में पुख्तगी आई, शिर्क व बिदअत का खात्मा हुआ, तहज़ीबी व सकाफ़ती आलूदगियों का इज़ाला हुआ और बिला मुबालगा रांची ज़िला का ये इलाका मुसलमानों के ताल्लुक़ से काफ़ी बेदार, सबसे ज़्यादा गयूर और दही इलाके में हर सतह पर बिरादरान वतन से अगर आगे नहीं तो कम अज़ कम हमसरी के मकाम पर ज़रूर खड़ा है। अगर अपनाए कदीम दारुल उलूम की तालीमी खिदमात का जिक्र न किया जाए तो दारुल उलूम के खिदमात का जिक्र अधूरा रहेगा। अपनाए कदीम ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में दीनी व असरी तालीम के मेयारी इदारे कायम करके एक मिसाल कायम की है और तालीम की तरवीज व इरशाद में लगे हैं। बिलाशुबा इन इदारों को भी इसी मंबे नूर का परतू कहा जा सकता है। इन इदारों में कुल्लियतुल बनात परेपाट, फातिमा ज़हरा इटकी, जामिअतुल मुहसिनात हरदगा, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मांडर और शेख भिखारी एकेडमी बरहमबेग खुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मेहमानान मोहतरम,
हम बड़े फ़ख्र के साथ इस बात का भी जिक्र कर देना ज़रूरी समझते हैं कि बियाबान झारखंड की छोटे से इदारे पर हमेशा अकाबिरीन उम्मत की नज़र करम रही है। अकाबिरीन ने इस इदारे के निज़ाम तालीम और मेयार तालीम को नज़र तहसीन से देखा है और ज़िम्मेदारान मदरसा की हौसला अफजाई फरमाई है। ख़ास तौर पर आलम इस्लाम की मायानाज़ शख्सियत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी का इस इदारे से काफ़ी लगाव रहा है। 1980 ईस्वी में इस इदारे के वसी शान में एक अज़ीमुश्शान इजलास को खिताब करते हुए हज़रत मौलाना ने एक बड़ा तारीखी जुमला फरमाया था कि मुझे इस जगह से इल्म की खुशबू महसूस होती है, ऐसा लगता है कि इस इलाके से किसी अल्लाह वाले का गुजर हुआ है। हज़रत मौलाना के मज़कूरा जुमलों ने लोगों के अंदर जोश जज्बे की एक नई रूह फूंक दी थी, लेकिन बदकिस्मती से इसके चंद सालों के बाद ही एक ऐसा वक्त आया कि मकामी सियासत का शिकार होकर कुछ दिनों के लिए मदरसा बंद हो गया। ऐसे नाजुक हालात में मुल्क की एक और मायानाज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी ने हमारी दस्तगिरी फरमाई। मौलाना खुद तशरीफ़ लाए, अबनाए कदीम के इजलास को खिताब फरमाया और इदारे की निशात सानिया की जिम्मेदारी अबनाए कदीम के हवाले की और नहायत कम उम्री में इस गुनाहगार के नाजुक कंधों पर निज़ामत का भार डाल दिया जो अब तक कायम है। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयदुर रहमान आज़मी नदवी मोहतमिम दारुल उलूम लखनऊ का नाम ना लिया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। मौलाना मोहतरम का इस इदारे से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। मौलाना ने 2 बार यहाँ का सफ़र भी किया है और हमेशा इसकी खबरगिरी करते रहे हैं, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। और इस बात को भी हम फरामोश नहीं कर सकते कि दारुल को हमेशा बिरादरान वतन हिंदू आदिवासी भाइयों की हिमायत और मदद हासिल रही है। दारुल उलूम ने हमेशा अपने प्रोग्रामों में गैर मुस्लिम भाइयों को मदऊ किया है और शरीक भी होते रहे हैं। आज की इस मुज़ाकरा इल्मी में उनकी मौजूदगी से हम काफ़ी हौसला मिला है और मुल्क की चीदा और मुंतखब शख्सियात के सामने झारखंड में जिंदा भाईचारे की रवायत का बेहतरीन नमूना पेश करने का मौका भी हासिल हुआ है। हम अपने तमाम हिंदू आदिवासी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजा और सेमिनार में शरीक होकर जिंदा दिली का सबूत पेश किया। हज़रात गिरामी, आप जैसे साहिब इल्म फज़्ल उलमाए किराम व दानिश्वरान मिल्लत की आमद और एक मुक़द्दस उन्वान के तहत इस मुज़ाकरा इल्मी के इनेकाद से हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं और हमारे ख्वाबों की खूबसूरत ताबीर की झलक भी दिखाई दी है। इंशाअल्लाह ये सेमिनार हमारे अज़्म हौसले और रफ्तार के लिए भी महमेज का काम करेगा। हमें यकीन है इस मुक़द्दस सेमिनार में पढ़े गए मकालात की सदाए दिल नवाज काफ़ी देर तक सुनाई देती रहेगी और इसके फ्यूज़ व बरक़ात का अब्र रहमत तादेर हमारे ऊपर साया फ़िगन रहेगा। हम अबनाए कदीम मदरसतुल इस्लाह सरायमीर झारखंड शाख के बेहद ममनून व मशकूर हैं, जिनकी कोशिशों से आज के इस मुक़द्दस व बाबरकत सेमिनार का इनेकाद मुमकिन हो सका और मकाम सेमिनार के लिए दारुल इस्लाम नगर का इंतखाब किया गया। हज़रात गिरामी, हमने काफ़ी देर तक आपकी शमा खराशी की है, लिहाजा आपके एहसासात की इस तर्जमानी के साथ सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर फिर एक बार दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करते हुए आप हज़रात से रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये रोज़ो शब, ये सुबह शाम, ये बस्ती, ये वीराना, ये रोज़ो शब, ये सुबह शाम, ये बस्ती, ये वीराना, सभी बेदार है इंसान अगर बेदार हो जाए। मोहतरम हज़रात, ये हकीकत है कि हमारी अपने ही नाबेदार होने की वजह से ये बस्ती अब तक सूनी थी और बेदार हो जाने की वजह से इस जंगल में आज मंगल हम देख रहे हैं।